Hello everyone. In this module, we will study the next biomolecule which is called as lipids. Okay, now let's understand what are exactly lipids. In the earlier module, we discussed important biomolecule which was carbohydrate. We also understood the classification, and today let's understand what are lipids in general. Yes, now lipids are the group of molecules. They are group of molecules which which have greasy consistence with long hydrocarbon chain. ये ना मॉलिक्यूल जो होते हैं लिपिड्स के, ये बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. दे आर नॉट लाइक carbohydrates. They are extremely long molecules, so therefore they have a hydrocarbon chain. Now hydrocarbon chain मतलब definitely इसके पास कार्बन होगा, इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास ऑक्सीजन होगा. Yes, so they will have C, H and O. Now, one thing to note here in lipids, the ratio of hydrogen to hydrogen to oxygen is greater than 2 is to 1. ठीक है, क्यों ग्रेटर है आपको भी पता होगा. क्यों ग्रेटर? बिकॉज ये लॉन्ग चेन है, इनका जो लेंथ है वो बड़ा है. ठीक है, बट कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आपने देखा तो कार्बोहाइड्रेट्स में इट इज ऑलवेज 2 is to 1. यस, बट लिपिड्स में नो. तो लिपिड इज जनरली अ ब्रॉडर टर्म. ओके, इसके अंदर क्या क्या आता है? सो लिपिड्स इज यूज टू डिनोट और डिस्क्राइब फैटी एसिड, फैटी एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स. ठीक है, सो लिपिड एक टाइप का अम्ब्रेला है जिसके अंदर आप अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स पढ़ते हो, उसके डेरिवेटिव्स पढ़ते हो. एंड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नोट इज लिपिड्स आर नॉट soluble in water, but they are soluble in organic solvent. ठीक है, ऑर्गेनिक, ये पानी में नहीं soluble है. they're soluble in organic solvents. And example of a organic solvent can be benzene, it can be ether or etc. So these are also called as non-polar solvent. Yes, so fatty acids in general, okay, fatty acids in general, what are those? They are organic acids. Okay, organic acids, carbon, nitrogen, everything is present, so they are in general organic acids. Oh sorry, carbon, hydrogen and oxygen is present. Yes, which composed, which has a COOH group which is called as carboxyl group. तो फैटी एसिड्स का एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको आप बोलते हो COOH. एंड ऑल्सो दे हैव टाइप्स. इनके पास ना टाइप्स होता है. लाइक फॉर एग्जांपल fatty acids with no double bond. Yeah, let me color fatty acids with no double bond. क्या मतलब? इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको आप बोलते हो सैचुरेटेड. इसको क्या बोलोगे आप? सैचुरेटेड. दीज आर योर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. यस, नाउ एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल यू कैन टेक, one is called as palmitic acid, palmitic acid, this is a kind of a fatty acid. or also you can take stearic acid. तो ये भी एक टाइप का एग्जाम्पल है. तो palmitic हो गया, stearic acid हो गया, which are found in animal and plant fats. Okay, they are found animal and plant fats.
Okay, these are the examples of saturated fatty acids. Now if we talk about the second type, which is a fatty acid which has a double bond. Okay, अगर इनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? तो उसको बोलोगे unsaturated. What would you call it? You can call it as unsaturated fatty acids. Yes. Now you can take example as oleic acid, oleic acid, or you can take example as linoleic acid. Okay, these are the examples of unsaturated fatty acid which are found in many seed oils, and they're examples of unsaturated fatty acids, right? Now अभी एक चीज समझो आप. ओके, फैटी एसिड्स आर द बेसिक मॉलिक्यूल. तो फैटी एसिड है ना, एक टाइप के बेसिक मॉलिक्यूल है विच फॉर्म्स वेरियस काइंड्स ऑफ लिपिड्स. तो क्या करते, दे फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ लिपिड्स. अलग अलग टाइप के लिपिड ये लोग बनाते हैं. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द types or kinds of lipids can be classified as 3 different types. One is simple lipids, yes, like carbohydrate only. Yes, second is called as, then you have compound lipids, and third is what we call as derived. So simple है, कंपाउंड है और डिराइव्ड. ये अलग अलग 3 टाइप के लिपिड्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है, व्हेन यू अंडरस्टैंड लिपिड्स इन मोर ग्रेटर डिटेल, यू विल अंडरस्टैंड दैट lipids exactly, they see, understand, they are like a family or a kingdom. इसके अंदर you have different kinds of molecules. Okay, different kinds of substances. Okay, which सबका बेसिक यूनिट कहीं ना कहीं फैटी एसिड ही है. ठीक है, सो मतलब इसके अंदर अलग अलग कंपाउंड्स आ सकते हैं जो अलग अलग चीज़ों में क्लासिफाइड है. तो मतलब सिंपल बोल दो, कंपाउंड बोल दो, डिराइव्ड बोल दो. सो अकॉर्डिंगली लाइक दैट. यस, नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट. सबसे पहला क्या है? सबसे पहला इज अ वेरी बेसिक वन विच इज कॉल्ड एज लिपिड. लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल लिपिड क्या होता है. Okay, now what are simple lipids? Simple lipids are, understand, is they are esters of fatty acids. They are esters of fatty acids with various alcohols. With various alcohols. बोले तो मतलब सिंपल लिपिड एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास एक फैटी एसिड है और उसके साथ एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है. तो एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल जब एक बॉन्ड बनाते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ एन एस्टर लिंक. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है ना, इसके अंदर क्या एग्जांपल ले सकते हो? इसके अंदर यू कैन टेक फैट्स और यू कैन टेक वैक्सेस, आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल लिपिड्स. तो ये सारे सिंपल लिपिड्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं. ठीक है, नाउ जो फैट्स है ना, फैट्स दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड with a type of an alcohol. So here they are ester of fatty acids with glycerol. तो ये रहा फैट का मतलब. तो फैट क्या है? सो इट इज अ एस्टर ऑफ अ फैटी एसिड एंड अ ग्लिसरॉल. मतलब एक फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, दोनों को बॉन्ड कर दिया है, उसको आप फैट बोलते हो. ठीक है, उसको आप फैट बोलते हो. एंड इसके ही एक टाइप है, इसका ही एक टाइप है विच इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स.
is called as triglycerides. Now जब आप ये समझते हो कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो there are three molecules of fatty acid. There are three molecules of fatty acid and one glycerol. इसको क्या बोल दोगे आप? इसको क्या बोल दोगे? इसको आप बोलोगे ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है वो अपन समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड. सी अंडरस्टैंड, ट्राइग्लिसराइड में क्या है? 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है. सर व्हाट इज ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ एन अल्कोहल. इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं. पहले, सबसे पहले नाउ इन जनरल, ठीक है, इफ एट ऑल आई हैव टू ड्रॉ ओनली ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. देखो ध्यान से, ठीक है, इट विल बी CH2OH, then you have CHOH, then you have again CH2OH. ये है बेसिक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर. ये ऐसा कुछ ग्लिसरॉल दिखता है. बट अभी अगर हम लोग पूरा ट्राइग्लिसराइड बनाने जाए तो देखो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ट्राइग्लिसराइड में सबसे पहले भूलो मत, एक चीज़ कॉमन है, दैट इज एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, तो ग्लिसरॉल बना लेते हैं. तो देखो ग्लिसरॉल विल बी CH2O. just a second, just wait. Then you have CHO, yes, and then you have again CHO. सर वेर इज H? OH का H किधर है बताता हूँ. ये आपने ग्लिसरॉल बना लिया. अभी यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा. दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूँ, बॉन्ड. ओके, एंड देन यू विल हैव अ फैटी एसिड चेन. कैसा दिखेगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, डबल बॉन्ड O. यहाँ पे भी आएगा C डबल बॉन्ड O, पे भी आएगा C डबल बॉन्ड O. एंड देन यू हैव CH2, 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 एंड देन यू हैव CH3. ये एक टाइप का फैटी एसिड होगा. सेम यहाँ पे भी रिपीट कर दे, तो इट इज CH2, 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 CH3. सी द चेन कैन बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बट हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. CH2, 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 CH2 and CH. so this is one triglyceride. okay, जो अभी आपने यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड. अभी यही ट्राइग्लिसराइड के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट आपको दिख गए हैं अगर आप ढंग से देखोगे. तो एक कंपोनेंट है ग्लिसरॉल का जो लेफ्ट साइड में रेड में है, ठीक है, एंड देन देयर आर 3 फैटी एसिड चेन. करेक्ट. सिर्फ ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ है. ठीक है, अभी जरा समझो इसको. ठीक है, नाउ दीज अनसैचुरेटेड फैट्स, याद करो जरा अनसैचुरेटेड क्या था. ठीक है, दीज अनसैचुरेटेड फैट्स विच आर देयर, दे आर लिक्विड, at room temperature पे लोग क्या रहते हैं? they are liquid in nature. बरोबर. and they are called as oils. अभी आपको आई थिंक समझा होगा. तो जो ऑयल्स आप यूज़ करते हो, वेजिटेबल ऑयल हो गया या फिर और अलग अलग टाइप की जो ऑयल्स आप यूज़ करते हो, वो सारे के सारे एग्जाम्पल इसके ही हैं. ठीक है, नाउ अनसैचुरेटेड फैट्स जो है, यही अनसैचुरेटेड फैट्स, अगर इसको मैंने ना हाइड्रोजिनेट किया, ठीक है ना, सुनो, हाइड्रोजिनेट, ठीक है, मतलब इसको वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन करवा दिया. सो दे विल प्रोड्यूस अनदर टाइप ऑफ फैट, एंड दैट कैन बी अंडर द एग्जाम्पल ऑफ वनस्पति घी. ये भी आपको पता होगा, वनस्पति
सो ये सब कैसे बनते हैं? दीज आर द हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, सो डिफाइन करना रहा तो कैसे बोलोगे? दे आर हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ अ अनसैचुरेटेड फैट। अभी थोड़े जनरल फीचर्स पढ़ ले, थोड़े जनरल फीचर्स पढ़ ले फैट के। ठीक है, फैट्स जो है, सबसे पहले देखो फैट्स, इसका न्यूट्रिशनल सोर्स बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल सोर्स बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका कैलोरिक वैल्यू भी ज़्यादा है। मतलब इसके इधर से बहुत ज़्यादा कैलोरी अपने को मिलती है। फैट्स can act as a reserve food material. This is the universal. Okay, it can act as a reserve food material. It is a good storage material. ठीक है, सो बॉडी इसको स्टोर करता है अगर एक्सेस में आया तो। प्लांट्स के अंदर ये फैट्स सीड में स्टोर होता है, सीड्स में स्टोर होता है, एंड नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को, नरिशमेंट टू एम्ब्रियो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। तो मतलब प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स में कहाँ पे स्टोर करोगे? एनिमल्स में सी एरिया नहीं बात कर रहे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से फॉर्म में। तो दे विल बी स्टोर्ड इन द सेल्स कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। दे आर द टाइप ऑफ सेल्स which form what is called as adipose tissue। तो ये आपको मिलेंगे एडिपोसाइट्स, जो एक टाइप के फैट सेल्स बोल सकते हो, जो आगे जाके एक टाइप का टिश्यू बनाते हैं, विच इज अ फैट टिश्यू कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू। राइट नाउ जो फैट्स, सी अंडरस्टैंड, जो फैट्स सबक्यूटेनियस लेयर में डिपॉजिट होते हैं, मतलब स्किन इन शॉर्ट। ठीक है, स्किन, जो फैट्स सबक्यूटेनियस लेयर में डिपॉजिट होते हैं, दे कैन एक्ट एज अ इंसुलेटर टू द बॉडी। इंसुलेटर मतलब ठंडी से बचा सकता है। ठीक है, एंड दे विल मिनिमाइज, एंड दे कैन मिनिमाइज लॉस ऑफ हीट। हीट को भी वो लॉस होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फैट डिपॉजिट होता है अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स के लिए क्या बेनिफिट दे सकता है? ऑर्गन्स के लिए क्या बेनिफिट दे सकता है? इट कैन एक्ट एज अ कुशन, कैन एक्ट एज अ कुशन। ठीक है, मतलब मैकेनिकल शॉक से या फिर कोई ऑर्गन को डैमेज होने से बचा सकता है। करेक्ट। नाउ दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट फैट्स। ठीक है, कि फैट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सी, one thing we have to note and one thing we have to understand very clearly, which is fats are very good for your body until and unless to a point where it doesn't exceed the benefits, it doesn't exceed। Now what do you mean by that? कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ना, वो कब होते हैं? जब आपका बॉडी के अंदर फैट लेवल ज़्यादा हो जाता है, फैट का कॉन्सेंट्रेशन जो बॉडी में है, कंटेंट जो है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फैट कैन प्रूव मोर हार्मफुल देन बीन यूज। So therefore at that point of time it is a kind of a risky thing to be obese or to be fat। बट अगर कंट्रोल कंडीशन में है, अगर लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप खाते हो, अगर आपका जो इनटेक है वो बहुत बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, तो देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। बट एनीथिंग विच गोज इन एक्सेस, at that point we have to definitely consider that it can be a bit harmful to us। barabar, so we'll discuss that also in the next modules eventually, or in the next chapters for sure। so now fats के बारे में तो आपने देख लिया, अभी देख लेते हैं वैक्स के बारे में। ठीक है, वैक्स जैसे कि मैंने बताया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल लिपिड grid, is an example of a simple lipid। Yeah, what are they? They are esters. Again, they're esters of long chain fatty acids
they are esters of long chain fatty acids with long chain alcohols. बड़े बड़े alcohols है and बड़े बड़े fatty acids है, together they constitute what is called as wax. ठीक है, they are most abundant, they are most abundant in blood. Yes, they are present in gonads. They are also the important part of sebaceous gland. Sweat glands जो होते हैं हमारे, जो oily substance release करते हैं, even that is an example here. Okay, there is one thing to note here is waxes are not easily hydrolyzed as fat. Okay, they are not readily या easily hydrolyzed as fats. easily नहीं टूटेंगे ये easily break down नहीं होते. ठीक है, and they are solid at room temperature. रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे वो? they are solid. okay, now one important point about waxes, one important point which is extremely useful to many people, many organisms. waxes जो है ना, waxes, they form a water insoluble coating. They form water insoluble coating, okay, on hair and skin of animals. एनिमल्स के ऊपर एक परत सा बना देता है, उनके बालों पर हो सकता है, उनके स्किन के ऊपर हो सकता है, एंड ऑल्सो अ वैक्सी कोटिंग, also a waxy coating on stem, leaves, fruits etc. तो प्लांट्स के अंदर भी ये वैक्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है. तो देयरफॉर ये जो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट इज सिंपल लिपिड्स. ओके, सेकेंड टाइप का लिपिड्स कौन सा था, इफ यू कैन रिमेंबर? सेकेंड टाइप का लिपिड जो था दैट वाज कॉल्ड एज कंपाउंड लिपिड. कंपाउंड लिपिड्स मतलब अभी देखो यहाँ पे ना, इसका लिपिड्स के सिंपल स्ट्रक्चर्स तो रहेंगे ही, बट साथ ही साथ ना यहाँ पे कुछ तो ऐड होगा, कुछ तो ऐड होगा. अभी क्या ऐड होगा वही देखते हैं. सबसे पहले लेट्स ट्राई एंड डिफाइन व्हाट आर कंपाउंड लिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. डेफिनेशन विल रिमेन सेम, बट they contain other groups. ये अदर अलग अलग ग्रुप्स भी कंटेन कर सकते हैं, like phosphate. okay, then you can have sugar etc. अगर लिपिड्स प्लस फॉस्फेट रहा, क्या नाम दूंगा इसको? तो लिपिड प्लस फॉस्फेट रहा तो क्या नाम दूंगा इसको? मैं बोल सकता हूँ फॉस्फोलिपिड. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये. अगर मैं मान लो लिपिड ले रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ शुगर उसके साथ कंबाइन कर, तो उसको क्या बोलूँगा? ग्लाइकोलिपिड्स. समझ रहा है? तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई तो एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी प्रेजेंट है शॉर्टकट में. ठीक है, कोई तो एक एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट. इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दे हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल तो विल बी देयर फॉर श्योर. ठीक है, सो ग्लिसरॉल तो कहीं नहीं जा रहा, ग्लिसरॉल इज देयर, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड. सर बट 3 रहते थे. यस, बट अभी देखो ना यहाँ पे एक ग्रुप ऐड हो रहा है ना, एक कोई और ग्रुप ऐड हो रहा है, एंड अ मॉलिक्यूल
ऑफ फॉस्फेट और सिंपल शुगर। सो 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हो गए, साथ ही साथ अभी क्या, अभी एक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर और फॉस्फेट। तो स्ट्रक्चर कुछ अभी इस तरीके से बनता है। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो हैव नाइट्रोजन, समटाइम्स ऑल्सो यू कैन हैव नाइट्रोजन, अभी उसका बारे में अगर बाय एनी चांस, ठीक है। एग्जाम्पल इज, एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है जिसका नाम है लेसिथिन। लेसिथिन, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसा होता है। बट लेसिथिन क्या है पता है, एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है, बट इट हैज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। इट हैज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड अटैच्ड टू फॉस्फेट ग्रुप। मतलब फॉस्फेट ग्रुप को नाइट्रोजन का कंपाउंड अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं लेसिथिन स्टैंड्स आउट, because lecithin is an example of a phospholipid for sure. Phospholipid matlab it will have lipid and a phosphate, which is also, again we know this. But also one thing peculiar to note here is that along with phospholipid, that is a phosphate group, there is also one nitrogenous compound which is added, okay. So एक nitrogenous compound भी है जो added है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर इसका समझते हैं कि नाउ स्ट्रक्चर लुक समथिंग लाइक दिस। लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ दिस। ग्लिसरॉल तो सेम रहेगा, ठीक है। इधर लेट्स पुट द हेडिंग दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन, ठीक है। नाउ देखो ग्लिसरॉल तो सेम, इट विल बी CH2 O CHO, देन यहाँ पे वापस CH2O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। R बोले तो कोई भी अल्काइल ग्रुप, कितना भी लॉन्ग कार्बन चेन। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्राइग्लिसराइड बनाया था तो उसके अंदर अपन ने 6 कार्बन लिए थे, तो अभी आप कितने भी डालो, सो देयरफॉर आई एम पुटिंग इट एज R, ठीक है। R इज एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो लेट्स पुट इट, नेम इट एज R1। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम एज R2, बराबर। यहाँ पे अभी देखो आपने क्या, हम लोगों ने क्या बोला था, ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड चेन है और एक इज अ सब्सटीट्यूएंट, सो हियर इट विल बी फॉस्फेट, बराबर बराबर। अब यही फॉस्फेट को आगे जाके एक नाइट्रोजन अटैच्ड है। इफ यू नोटिस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यू कैन सी अ फॉस्फेट ग्रुप and also you can see a nitrogenous group, so this is one example of lecithin, okay. Do you have to remember this? The choice is yours, but it would be better if you remember it. In any ways we are not going to understand each and every structure as far as your state board exams are concerned. हर एक का स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं, बिकॉज वन थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू अंडरस्टैंड is that lipids का structure are not simple, they are complex, okay, they are very very complex. So therefore somewhere down the line, which the structures which are necessary, we will definitely cover them, yes. Now इसके बाद अभी जो फॉस्फोलिपिड है ना गाइस, सुनो जरा, अभी जो फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, कोई भी फॉर्म के फॉस्फोलिपिड्स, इनके 2 अलग अलग रीजन्स होते हैं, 2 अलग अलग रीजन्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। नाउ आई होप यू नो व्हाट इज हाइड्रोफिलिक। Hydrophilic meaning they will love or attract water, or they can retain water. Hydrophobic, they will repel, they do not like water, okay. So phospholipids have different 2 regions, okay. So they have hydrophilic
which is also called as polar groups, and hydrophobic, which is also called as non-polar groups. ठीक है, तो पोलर एंड नॉन पोलर के फॉर्म्स में भी आप उसको डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे अभी इसको क्लासीफाई करना होगा, सो फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस ग्रुप जो है, लुक एट द स्ट्रक्चर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस ग्रुप जो है, दे कैन बी कंसिडर्ड एज पोलर, they can be considered as polar. And hydrocarbon chain of fatty acids, this is the but obvious na, so hydrocarbon chain of fatty acid will be considered as non-polar. obviously no, fat है वो कैसे पानी को attract करेगा, not possible, ठीक है। so therefore यही जो phospholipid है ना, these phospholipids, they are extremely important for formation of सेल मेम्ब्रेन बनाने में यही फॉस्फोलिपिड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स जो रहेंगे, इनके पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स के पास क्या है, ग्लिसरॉल है। लेट्स अंडरस्टैंड, दे विल हैव ग्लिसरॉल, दे विल हैव फैटी एसिड्स, एंड दे माइट हैव अ सिंपल शुगर। ओके, सिंपल टाइप का शुगर भी हो सकता है। नाउ सिंपल शुगर लाइक गैलेक्टोज, ठीक है, एंड ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस। सो मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। These glycolipids are also called as cerebrosides. Now why they are called as cerebrosides? Cerebro मतलब something related to brain, ठीक है। so therefore they are also found in brain, okay, specifically white matter. Now white matter is the region in the brain, okay, we'll understand more about it when we understand the chapter of control and coordination, which is in your 12th standard. Yes, so it is also found in the brain, and they are also found in the myelin sheath around the neurons and everything. Therefore cerebrosides, or also called as glycolipids, are extremely important because they also form a part of a nervous system, especially brain and also neurons. Okay, abhi we'll draw 3 different structures, okay, now which are very very simple. हम लोगों ने भी कुछ ही टाइम पहले सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का बात किया था। yes, now let's try and visualize how does a saturated and unsaturated fatty acid look, ठीक है। now let's take example here, अगर अपन ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब बिकॉज अपना सिंपल लिपिड कंप्लीट हो चुका है एंड कंपाउंड लिपिड इज अबाउट टू गेट कंप्लीट, so let's try and understand कि how does a saturated look. Saturated मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, बराबर, डबल बॉन्ड नहीं है। so इधर यहाँ पे you'll have a functional group which is called as COOH, right, and then you can have a carbon chain. A carbon chain can exist in like a 15, अभी ड्रॉ कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15, okay, you can draw according to the structure what you are drawing, but here I am taking one example, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे 1 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हियर विल बी हाइड्रोजन, सिंपल। तो देखो अभी अगर आप देखोगे, अगर अच्छे से नोटिस करोगे, तो यहाँ पे देयर इज नो डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है,
तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? ऐसे स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सैचुरेट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स are those fatty acids which do not have a double bond. उनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और इसके अपन ने एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, बट जस्ट नाउ फॉर रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे। दिस इज हाउ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड माइट लुक, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल विच इज योर unsaturated fatty acid, ठीक है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, चेंज क्या होगा? एक डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ दैट। इट विल बी OH, दिस विल रिमेन सेम, 1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे you have a double bond, okay, then you have again 1 2 3 4 5 6, okay, something like this. Now can you put hydrogens? Yes, we can definitely put it. Let's first branch it. Yes, so the difference is only of a double bond, nothing more than. हाँ, एक चीज है I would like to add here that it see lipids are generally, see उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं लिपिड के बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू ट्राई एंड रिकलेक्ट और ट्राई एंड मेमोराइज इट, मेक श्योर दैट बेसिक्स आपके क्लियर है स्ट्रक्चर के ड्राइंग के टर्म्स में। मतलब अगर कोई एग्जामिनर आपको पूछे दैट सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, या उसका एक एग्जाम्पल दो, तो नीड नॉट नेसेसरी कि एक स्पेसिफिक को एग्जाम्पल देना है आपको। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सैचुरेटेड का मतलब क्या है और अनसैचुरेटेड का। once you know that, I think you can fairly explain the examples, so therefore that will not be a problem. This is the example of unsaturated fatty acids, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, फॉस्फोलिपिड क्या होता है। फॉस्फोलिपिड के दो हिस्से हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक is also called as polar, hydrophobic is also called as non-polar, and it is also important constituent of cell membrane। मतलब अक्खा का अक्खा जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो इससे ही बना हुआ होता है। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर अगर अपन रफली ड्रॉ करने को जाए तो इट वुड बी लाइक दिस, यू हैव सर्कुलर फॉर्म्स, सो सर्कुलर, इसको आप बायोलॉजी में हेड बोलते हो, हेड। These are called as head. These are the structures. So I'm drawing one short section of a cell membrane. Okay. And इसके यहाँ पे then you have this is what is called as tail. इसको बोलते हो tail. तो इससे ना पूरा सेल का जो मेम्ब्रेन है ना, इससे ही बनता है। is completely formed with this phospholipids only, and now you can see कि आपने बना दिया। अब इसको लेबलिंग करने जाए, so what will be, these regions, yellow color will be your non polar tails, okay, they will be non polar tails, these will be your polar head, हाइड्रोफिलिक वाले, ठीक है, हाइड्रोफिलिक वाले। एंड इसको एक साथ आप क्या बोलोगे, एक साथ क्या बोलोगे, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, बराबर बराबर। और इसके सराउंडिंग में यहाँ पे यू विल हैव दिस रीजन, यहाँ पे क्या होगा, दिस ब्लूइश कलर, दिस वाटर, यहाँ पे आपका पानी रहेगा, पानी। सो अभी इससे तो आप एक आइडिया लगा ही लोगे
the head hydrophilic tube. हेड के आजू बाजू में you may have water, so to attract or to allow the water, head is hydrophilic or also called as polar, which can allow the water, and जो tail है it is hydrophobic or non-polar, which may not allow the water. Yes, अभी अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल लिपिड क्या होता है, बराबर, सिंपल लिपिड क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपाउंड लिपिड्स क्या होता है, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप, ठीक है. थर्ड टाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरॉल और डिराइव्ड लिपिड्स. यस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लिपिड, इट्स कॉल्ड एज स्टेरॉल्स और डिराइव्ड लिपिड. सो थर्ड क्या है? थर्ड is sterols. This is bit easier to you. Okay, now these sterols, they are the derived lipids. Okay, उनका नाम है derived lipids और उसको broadly आप क्या बोलते हो? Sterols बोलते हो. Okay. Now they are made of fused hydrocarbon rings. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स. ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्टेरॉइड न्यूक्लियस. मतलब ये रिंग फॉर्म में आपको ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, अभी अपन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बट जनरली इसके रिंग फॉर्म में ज़्यादा मिलेंगे आपको. एंड यू विल हैव अलॉन्ग विद द स्टेरॉइड न्यूक्लियस, यू विल हैव अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन. यू विल हैव अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन side chain. Okay, so this is what is a basic structure. Okay, one of the most common, can you tell me one of the most common sterols? Yes, some of you might have guessed it correctly. It is called as cholesterol. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे. okay, this cholesterol is widely distributed. It is present in the animal body. एनिमल बॉडी में ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड साथ ही साथ बी मोर स्पेसिफिक, इट इज प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू एज वेल. नर्वस टिश्यू. There are not types of cholesterol. One is what is called as good cholesterol and also called as bad cholesterol. Bad cholesterol is the one which is not very beneficial to us, and if at all it increases might end up in multiple problems. But good cholesterol is required for our body. Okay, and this cholesterol can exist as a free form. It can exist as a free form, मतलब freely moving हो सकता है, or it can be present in the form of a cholesterol ester. तो दो, मतलब एस्टर लिंकेज के साथ प्रेजेंट हो सकता है क्या, या तो फ्रीली मूविंग हो सकता है, डिपेंड्स. ओके, नाउ और अलग अलग एग्जांपल्स हैं स्टेरॉल्स के, लाइक फॉर एग्जांपल एड्रीनो corticoids. These are released from your adrenal gland, which is present above the kidneys. Okay, then you have sex hormones. इसके अंदर examples are progesterone, yes, that is present in females. Testosterone, majorly present in males, and it is a secondary sexual hormone. And also vitamin D is synthesized from cholesterol. विटामिन डी तो आपको पता है कि कितना ज़रूरी है बॉडी के लिए. वो भी किससे बनता है? वो भी भाई कोलेस्टेरॉल से ही बनता है. ठीक है, नाउ कोलेस्टेरॉल विच इज़ देयर इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स के अंदर कोलेस्टेरॉल नहीं होता. So it is not found plants.
प्लांट्स के अंदर नो, देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल। प्लांट्स के पास कोलेस्टेरॉल का भाई है, ठीक है, जो कोलेस्टेरॉल जैसा ही है, बट प्लांट्स के अंदर उसका नाम है फाइटोस्टेरॉल्स। क्या बोलोगे उसको? फाइटोस्टेरॉल्स, ठीक है। अभी एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है जिसका नाम है याम प्लांट, याम प्लांट, विच इज कॉल्ड एज डायोस्कोरिया, साइंटिफिक नेम डायोस्कोरिया, ठीक है। ये एक स्टेरॉइड बनाता है, ठीक है, ये जो प्लांट है ना, एक स्टेरॉइड कंपाउंड बनाता है। देखो इसके एप्लीकेशंस देखो। अभी एक स्टेरॉइड कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है डायोस्जेनिन। What do you call it? You call it as diosgenin. Now, diosgenin is extremely useful. It is extremely useful in anti-fertility pills, manufacturing of anti-fertility pills. मतलब जो couples are not able to conceive, ठीक है, so therefore that can be produced with the help of diosgenin, ठीक है, so therefore it will help. तो कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशंस है, दैट इज फॉर एग्जांपल बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, बर्थ रेगुलेशन, तो बर्थ कंट्रोल पिल इज वन सच एग्जांपल, ठीक है। सो मतलब प्लांट के अंदर का भी जो फाइटोस्टेरॉल है, वो भी एक्सट्रीमली यूजफुल है, ठीक है, एंड इट हैज़ अ मेडिसिनल एप्लीकेशंस एज वेल। यस, एंड ऑल्सो विद दैट सी कोलेस्ट्रॉल के अच्छे बेनिफिट्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज सम बैड बेनिफिट। एनीवेयर इफ यू टेक कोलेस्ट्रॉल विच इज more than required amount of quantity, you will end up in trouble. You can have different problems in your body, like for example heart diseases, and therefore always advisable to have a control over these things, because your body takes it in, but if at all it is not used up, it is again going to go in the blood, and then it might form plaque, and then it may block your major arteries, and then a person might suffer from a cardiac arrest or an heart attack, or also might have a kind of heart diseases. Therefore anything under control is always good. So it is always better to have things but in a proper control. Yes, okay, so let's draw the structure of cholesterol now. कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, it is important for your knowledge, and you should know it. If you regularly practice it, you will understand it, and you'll be able to also draw it very nice. Okay, now let's understand the structure of cholesterol. As we know that it has a ring, okay, so let's draw a ring. One ring, one more, so the second ring पे और एक रिंग है, this is one more closed steroid nucleus. Have here antenna like structure, so in general this is how a cholesterol molecule. Here you have a OH group, यहाँ पे you have a double bond, and you can label it as just for your understanding, A ring, your B ring, C, and your D. Okay, so therefore it is a 27 carbon compound. Okay, 27 total number of carbon is 27. So therefore this is how a cholesterol structure looks. Okay, now
Now, up till now, we have completed entire carbohydrates. We also have completed entire lipids. Okay. In the next module, we will start with the next biomolecule, which is called as proteins. I hope ये मॉड्यूल का कंटेंट आपको समझा होगा. अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. I will definitely answer them. And if you like our work, if you like our effort, please consider liking our video, sharing it, and also subscribing it. See you in the next module. Thank you very much.